Gurutam. No problem on it. Okay, so guys, in today's topic, we will learn about the forces. Okay, forces, and we will also learn about laws of motion. So our new chapter is force and the laws of motion. So first of all, I would like to discuss about the forces. Okay. So Srishti, anything do you know about the force? What is force? Simply push or pull. A push or pull is known as force, Force. right? So I will just upload one image and I will show you what it looks like. So in this image, in the first image, you can see a man is pushing the object. The man is pushing the object. So Pushing. he is pushing the object. So it means that he's applying the force, right? And another one is the Yes, sir. man is pulling the object by a rope or any way. So it means that it's also applying a force, right? So Yes, sir. by the definition, Definition. you can say here a pull, a pull Apple. or push on an object, is Object. called force. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग Yes, sir. चैप्टर है अगर ध्यान से देखोगे तो चलो सना डू यू अंडरस्टैंड इट Yes. सो can you give me any other example of force which you do every day So I yes think another example of force will be like, for example, if we are dragging a chair and we're taking it from a particular place to maybe say our study table, then it's also considered as force. हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट एग्जांपल इज द डोर We're closing the door, we're opening the door, we're pulling it and pushing it. यस यू आर पुल आपने बहुत तो जगह देख घर पे तो नहीं लगा होता लेकिन ऑफिसेज में मॉल्स में शॉप्स में देखा होगा पुश एंड पुल का एक चिपका रहता Sliding door भी होता है, and we also have a door on our kitchen door, like it's a glass door. है राइट Yeah, you push it from one end and then you pull it from the other. करेक्ट सो इस तरह के डोज होते हैं जहां हम डेली लाइफ में फोर्स अप्लाई करते हैं राइट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स नॉट अ सिंगल डोर वाला नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपने ड्रॉर खींचा राइट अलमीरा को पुश किया टेबल पुश किया ठीक है तो दैट इज व्हाट दैट इज यू आर अप्लाइंग द फोर्स राइट Yes. सना you have brother or sister small I'm a young sister. young sister तो उससे फाइट होती है कभी हमेशा सर. हमेशा ओके तो फाइट होती है तो क्या करते हो उसके साथ थप्पड़ मारा मारती है, मैं ऐसे नहीं मारती, like अच्छा वो मारती है ओके तो अच्छा चलो वो मारती है इसका मतलब क्या हुआ शी इज अप्लाइंग द फोर्स yeah. राइट सो शी इज डूइंग द फिजिक्स तो ठीक है ना पढ़ोगी नहीं तो फिर क्या होगा छोटे वाले मारेंगे चलो कोई नहीं सो इज द डेफिनेशन नोटेड Yes. ओके अभी देखो फोर्स और भी हैं मैं बता देता हूँ और भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ फोर्स के बारे में force can be possibly like these things also. I'm just going to upload one small image here. Just a moment. In the bottom part, I have uploaded something. So, Sana, can you read this? What I have uploaded here in the last? Yeah, forces are used in our everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. Right. अब ये pushing, pulling तो समझ में आ गया. Lifting is, for example, if we are like, for example, if there's a box on a table or like anything, for example, if I'm lifting a bowl, like a bowl from the kitchen, ना जैसे उसको बोलते हैं ना like you know, like just say it as a box full of apples. I'm lifting it and I'm taking it from one place to another. So I'm हाँ applying. सिंपल सी बात है ना बर्थडे में केक तो खाते हैं ना केक खरीद के तो लाते हैं Yes.
तो खरीद के जब केक हाथ में लेकर आते हैं तो वो बॉक्स में देता है या फिर उसने एक पैकेट में दिया, पैकेट टांग के लाते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग दैट, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, Lifting. Yeah. वी आर अप्लाइंग द फोर्स, राइट. Yes. अच्छा, तो लिफ्टिंग हो गया वो, राइट. उसका स्ट्रेचिंग के लिए क्या, कभी कभी आप The rubber band. So like when we tie our hair, we're using a long rubber band. करेक्ट. ट्विस्टिंग में क्या करते हो, कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हो आप, उसको निचोड़ते हैं. पानी निचोड़ते हैं ना. So what we are doing basically, we are twisting it. So for pressing, we can say like when we are making a chapati, we're pressing it. Obviously, you are pressing it, right? या फिर कोई रबड़ का बॉल हो गया, उसको क्या करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं हम, right? खेलते वक्त कभी कभी गुस्से में आके उसको प्रेस करते हैं. या फिर आपने देखा होगा एक येलो कलर का किसी का हाथ टूट जाता है, सो एक येलो कलर का बॉल देते हैं उसको प्रेस करने के लिए. Yes, sir. देखा है कभी? Yes, sir. Give me a second, I will just show you. Yellow ball, blood. एक सेकेंड. मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ. ओके, यू विल गेट इट दैट. क्योंकि मुझे तब मालूम चला था जब मैं ब्लड डोनेट किया था. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. देखो, मैं यहाँ इमेज बहुत बढ़िया वाला तो नहीं दूंगा आप लोगों को. ओके, कॉपीइंग इट. ओके, आप ये देखो, इस तरह का कुछ रहता है. कैन यू सी दिस इमेज? Sana, can you see this? Sana? Yes, sir, I can see it. Yeah, इसमें क्या Yes, होता है sir. मैं बता देता हूँ. Pressing Blood. them also kind of, we can also call it a stress buster. So when we are pressing it, Yes. अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक मैंने अच्छे फिगर नहीं लिया है जानबूझ के कि अच्छा नहीं लगता यहाँ पे. सो बेसिकली यहाँ ब्लड सैंपल कलेक्ट हो रहा है ह्यूमन बॉडी से, राइट. तो जब ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं ना डॉक्टर, तो किसी किसी को इस तरह का बॉल दे देते हैं जिनको घबराहट होती है, या फिर क्या होता है, इससे पंपिंग होता है ब्लड और आसानी से ब्लड निकलता है. whenever उसको भी अलावा इसलिए भी देते हैं, like जिस तरीके से घबराहट होती है, so like that person tends to, for example, if they're my fingers, so I tend to push them towards my Right. palm, so that kind of affects the flow. And if I have something like this in my hand, then it's in control. So I am Correct. actually, whatever pressure that I am giving to the ball is taking in. It's not harming my body in any way, or the blood that is being taken from my body. Correct. Okay, so do you understand what is force and what type of force it is, right? So आप note down कर लो. The force can be also, note करो second line. The force can be also pushing, pulling, lifting, stretching, twisting, and pressing. Please note down the sentence. The force can be also pushing, pulling, lifting, stretching, twisting, and pressing. Done? No, sir. Sana, done? Yes, sir. Okay, shall I change the page, Shrishti? Yes, sir. Okay, चलो. अच्छा, आप लोगों के पास इरेजर है क्या, आप लोगों के पास रखा हुआ? Yes, sir. तो इरेजर या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या बुक्स जो भी टेबल पे है निकाल लो. ठीक है. एग्जाम्पल लो कि ये मेरे पास एक इरेजर है, मैंने इरेजर को अपने टेबल पे निकाल लिया. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा. सो कैन यू डू द अप्लाई द फोर्स हियर? कैन यू अप्लाई द फोर्स? उसको धक्का दो. So there's some background disturbances. ओह ओके. जस्ट इसको धक्का दो, पुल करो, फिर पुश करो. Yes, sir. वो हिला. तो क्या हुआ कि अब इरेजर हमारा कहाँ चला गया? इरेजर कुछ हमारा इस पोजीशन पे आ गया, राइट? Yeah. Basically what is happening? Basically it's moving. So एक बात बताओ, आपने फोर्स अप्लाई किया था अभी? Changing its position when we're applying a force to it. So Yes, sir. आपने फोर्स देखा क्या आईज से?
आपने फोर्स देखा क्या? आपने क्या किया? आपने बस मैंने फोर्स नहीं देखा, लेकिन मैंने डिस्टेंस ट्रैवल देखा, which represents that कि कोई फोर्स लगी इसीलिए इसने डिस्टेंस ट्रैवल। correct, right. So Srishti, what we understood from here, we understood that force cannot be seen. Force Cannot be seen. cannot be seen. We can see the effect of forces. What we can see? We can see the effect of forces, right? We can. फोर्स Force. कैन नॉट बी सीन। फोर्स हम नहीं देख सकते ना। हमने यहाँ बोला कि फोर्स लगाओ, आपने तो पुश कर दिया जी, फोर्स कहाँ लगाया? लेकिन आप बोल रहे हो कि हाँ जी हमने फोर्स लगाया, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस मूव हुआ, इसका मतलब कि मैंने पुश किया तो बॉडी मूव हुई, बॉडी मूव हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने फोर्स अप्लाई किया। So basically you are looking the effect of forces and then you are telling me that you have applied the forces. Am I right? Sana? Yes. No. Sana, am I right? Yes sir. Okay. So ये दो सेंटेंस जल्दी से नोट कर लो। So done. पर सर किसी वॉल को पुश करने से वो उसका तो इफेक्ट दिखेगा नहीं। आई एम कमिंग टू दैट, मैं आ रहा हूं। आप इसको नोट कर लिया? ओके अब चलो मैं एक चीज यहाँ मैंने बस दो सेंटेंस लिखा था कि फोर्स कैन नॉट बी सीन, ओनली वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, राइट? अब देखो इफेक्ट में सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ डिस्टेंस मूव हुआ, इफेक्ट में सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ डिस्टेंस मूव हुआ, देयर आर मेनी इफेक्ट्स, देयर आर मेनी इफेक्ट्स। Yes, out of them we will discuss few. So ये सेंटेंस तो आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, फोर्स कैन नॉट बी सीन, राइट? आपने फिर लिखा था वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो आप टॉपिक का नाम लिखो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आप ये टॉपिक का नेम लिखो यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। राइट इट डाउन प्लीज। Okay sir. I will explain, don't worry. So we have to do this. हाँ नोट लिखो मैं बता रहा हूँ। सेंटेंसेस लिखने हैं क्या? We have to write these sentences. नहीं मैं बताऊंगा, वही लिखना है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस लिखा ऊपर में, एक मिनट सर लिख रही हूँ। यस सर। टॉपिक का नेम लिख लो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जो मैं बोलूंगा वही लिखना, उसके अलावा मत लिखना। सर लिख लिया इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके नाउ फर्स्ट पॉइंट, उसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। A force can move a stationary body. सृष्टि लिख लिया? यस सर। Okay, just a second. एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा और मैं अभी आप लोगों के सामने ओके सना डन? Yes, I've written the first point. फर्स्ट पॉइंट ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है। ओके वहीं वेट करो। ओके आई एम कमिंग टू द अनदर पॉइंट्स, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। Give me a moment, I'm just coming. यार ये तो अच्छी इमेज नहीं है। ओके किसको फुटबॉल पसंद है? फुटबॉल देखते हैं मैच? यस सर, कभी कभी फुटबॉल मैच देखा है। ओके चलो अभी हम एक फुटबॉल गेम खेल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके देखो यहाँ पे दो टीमें हैं, राइट? और अभी हम लोग ये फुटबॉल मैच इस पे देखते हैं। अभी देखो इसमें क्या होगा। अभी स्टार्टिंग में क्या होता है सना फुटबॉल मैच में कि हमारा जो बॉल होता है वो यहाँ पर रखा रहता है, राइट?
और जब तक रेफरी विसिल नहीं बजाता, दोनों देखो, एक टीम देखो इधर देखो, ये सारे एक तरफ है खड़े, मैच सारे टीम एक तरफ हैं और ये टीम वाले एक साइड है, देख रहे हो आप। अभी बॉडी, अभी जो बॉल है, बॉल हमारा यहाँ पर है, बॉल कहाँ पे है, इस जगह पे, राइट। अब ये बताओ, बॉल हमारा यहाँ पर है, इस प्लेयर के पास, बॉल किस स्टेज में है, स्टेशनरी है या मूविंग है, सना? बॉल इज इन स्टेशनरी और बॉल इज इन मूविंग? द बॉल इज इन स्टेशनरी, राइट। सो व्हेन द बॉल इज इन स्टेशनरी, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, बॉल बस यहाँ पे बीच में रख दिया गया है, ठीक है, और सारे प्लेयर्स इधर उधर हैं, बॉल अपने आप मूव कर जाएगा क्या, कैन इट मूव? ऑटोमेटिकली तो मूव नहीं करेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा मूव कराने के लिए बॉल को, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। सो जैसे ही कोई प्लेयर इस बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा, मींस इट विल किक द बॉल, so the ball will move in this direction, right? So ball will reach to this place. So basically what we have seen, when we have applied the force and we have kicked the ball, मतलब kick मतलब force applied किया, तो हमारा क्या हुआ, बॉल मूव किया। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से अब ये क्या बन गया, अब ये मूविंग बॉडी हो गया, क्या हो गया, ये मूविंग बॉडी। तो ये देखो, मूव और स्टेशनरी बॉडी। सो हमें क्या दिखा कि ये बॉडी मूव किया, इसका मतलब है कि हमने अप्लाई फोर्स किया। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट इज डन, सना। सना, सेकंड पॉइंट लिखो, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। नोट इट डाउन फास्ट। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। Noted? डन सर। Sana done? Sana? So 1 second. Okay. Yes, sir, done. Okay. I am giving you another example. Give me a second. Upload हो जाओ, ये टाइम क्यों ले रहा है? Okay. In this picture, guys, you can see here that a player is trying to kick the ball in this direction, right? So when the ball will reach to here and the goalkeeper wants to stop the ball, what he will do? He will apply the force in opposite direction. He will apply the force in opposite direction. So in that case, the ball will stop, right? So अब उसने force तो opposite direction में लगाया, उसने तो बस बॉल को रोका, तो बॉल को रोकने का मतलब कि he will apply some forces. तो हमें उसका इफेक्ट दिखा, हमें फोर्स नहीं दिखा कि उसने किधर फोर्स क्या किया, उसका इफेक्ट था कि बॉल रुक गया। बॉल कैसे रुका, तो हमने ये सोचा कि they have applied the force. Is that clear? Yes. So please, okay, I'm coming to the third point. The third point says that, third point note karo, a force can change the speed of moving body. Jaldi se note down karo. Can you do it fast? डन सर। अच्छा चलो, अभी एक बात बताओ, इस इमेज में, असना नोट डाउन हो गया? Yes. अभी इस इमेज में एक बात बताओ, कहाँ गया, अरे यस, अभी यहाँ पर हमारा बॉल एग्जाम्पल लो कि 2 मीटर, ओके,
2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, राइट? इस प्लेयर ने जोर से किक लगाया, इस प्लेयर ने जोर से किक इसी डायरेक्शन में लगाया, तो बॉल की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। तो बॉल की स्पीड बढ़ने से क्यों बढ़ेगी इनकी स्पीड? रीजन? फोर्स अप्लाइड हुआ। So if the ball speed reaches 2 meter per second to 8 meter per second, that means speed is increasing, and when the speed will increase, we will think that there is force applied, right? So these are the effect of what? These are the effect of forces by which we can say yes, force is applied. Clear hai? Yes, Sana, do you clear? Sana, Yes, sir. please note down the next point. The force can change the direction of moving body. और इसका एग्जाम्पल सृष्टि आप मुझे बताओ. The point, I'm still writing it. ओके ओके, ठीक है, आप लिखो, जल्दी लिखो. So done. Okay. Srishti, give me the example of it. तो किसी भी क्रिकेट मैच में जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो वो एक सीधी डायरेक्शन में जाता है, और जब बैट्समैन उसे हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। Right, correct. That's great. So that is a good example of it, right? I will give you one more example in this, very easy and simple one. Okay, I'm uploading. Sana, what you can see in this picture? Sana. That is applying force through which the ball is going to the other part of the tennis court. ये लॉन्ग टेनिस बोलते हैं ना इसको, खेलते बच्चे. Not tennis. तो लॉन्ग टेनिस में क्या होता है, एक तरफ से आया दूसरी तरफ फिर वापस फेंकना रहता है, राइट? Through the force applied from the racket. Correct. So this is the example of change of direction, right? Because like from you can say, let's consider the person to be in the east, so it's from the east coming to the west. Correct. No, next point. Force can change the shape and size of the body. जल्दी से नोट करो. Is it done that? Yes, sir. Okay, guys. I'm going to tell you the example of it. बहुत simple सा example है. Uploading and uploading here. Sana, what you can see in this? That the force is applied from both the end, which is squishing the ball. Crushing the ball, right? Squeezing the ball, right? अच्छा. Okay. दूसरा एग्जाम्पल जो कि आप कितनी बार करते आए हो बहुत टाइम से. Crushing the can when we're applying force, so basically we're pressing it. Right. So ड्रिंक पिया, कुछ भी पिया और उसको क्या करते, क्रश कर देते, बॉटल को भी क्रश कर देते, राइट? सो क्रश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है
कि आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तभी तो क्रश हो रहा है, मींस द शेप एंड साइज इज गोइंग टू चेंज. डू यू अंडरस्टैंड? सृष्टि, Yes. डू यू अंडरस्टैंड? सो प्लीज पॉइंट नोट हो गया है आप लोगों का, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, राइट? Yes, sir. Okay, so we are moving ahead now, and we will move to the next part of it. Now, I think you should know about it. Do you know types of forces? So, types of forces, two types के होते हैं basically. एक होता है contact forces. क्या होता है? Contact forces. और दूसरा हम कहते हैं non-contact. So under non-contact forces, there's gravity. I will come. Contact forces and non-contact. Pressing, pushing, pulling, all of them are contact. Right. So contact में basically अगर हम देखें, so it will be called as all mechanical forces. क्या बोलेंगे हम? All mechanical forces, and it will have a physical contact. But it will have a physical contact. Okay. A question, it's not related to this. Like it's a question. Just a moment. मैं एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ. Okay. Can you see this guy's image? Yes, sir. So in this image, you can see that it says that two types of forces we have: contact forces and non-contact forces. So in the contact forces means the forces experienced by the bodies when they are in physical contact with each other. And इसमें क्या है? Contact with each other. Yeah. So contact forces में simple सी बात है, इसमें physical contact होगा, means physical touch रहेगा. और इसमें क्या होगा? No touch, कोई touch नहीं होगा, right? Physical touch कुछ भी नहीं होगा. So that is known as non-contact forces. And you can see they have already written this, right? इसमें physical contact या contact forces में muscular force, frictional force, pushing, pulling, lifting, stretching, सारे forces जो हैं वो contact forces में आ जाएंगे, right? Non-contact में कौन कौन सा आएगा? Magnetic, electrostatic, and the gravitational force. Even one more force, I think you don't know about it. मैं just नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, nuclear force. तो आप एक काम करो, आप इस तरह का टेबल बनाओ, इस तरह का टेबल, ठीक है? और इसके नीचे पहले डेफिनेशन लिखो. क्या लिखो आप? डेफिनेशन. इसके भी नीचे डेफिनेशन. डेफिनेशन कहाँ से मिलेगा? तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे. कैन यू सी दैट? तो आप डेफिनेशन लिखो. ये सना, आप कुछ बोल रहे थे सना बीच में, मैंने आपको बोला बाद में बताएंगे. पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? Sir, these days our teacher in school, she's doing first chapter का वो क्या कहते हैं, the equations. So under that she's using graphs to find out those equations. She's using what? Graphs. ग्राफ. इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उनको करने दो. But that was just for telling you the equation how it comes. Okay? But it's very confusing. हाँ? Very confusing. आप उसको रहने दो. ग्राफ से इक्वेशन करना वो रहने दो आप, ठीक है? जो मैंने बता रखा है आप जस्ट फोकस ऑन इट. वो नहीं आता एग्जाम में. जितना मैंने बता रखा है दैट इज फाइन फॉर यू. ओके? ग्राफ में दो ही चीज आती है, वीटी और डीटी वाला ग्राफ. याद है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. यस, उसमें एक्सेलरेशन एंड उसमें डिस्टेंस निकालना और स्पीड निकालना, यही सब है. गिव मी अ सेकंड. So both of you done with this? Yes, sir. Okay. Actually, I'm at my house. So, okay. So दोनों का definition हो गया, था ना? Yes, sir.
सर मेरा डेफिनेशन हो गया, मैं वो टाइप्स लिख रही हूँ. So नीचे में आप लिख लो एग्जाम्पल्स. सृष्टि एग्जाम्पल्स के नाम पे लिखो मस्कुलर, फ्रिक्शनल. ठीक है, इसमें और लिख लेना आप, जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग. These are the examples of it. So जल्दी से नोट कर लो. अच्छा, मैग्नेट वाला मालूम है मैग्नेट फोर्स कैसे अप्लाई करता है? यानी किसी पता है ना? ओके गुड. मैग्नेट में कोई टच नहीं होता. It attract iron towards it. Yes, they attract the iron towards them. मैं और भी एग्जांपल्स अपलोड कर देता हूँ. साउथ पोल. मैं और भी एग्जांपल्स आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ, but we will not go into in depth, only for your knowledge. Okay, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ guys. ये आपके नॉलेज के लिए मैंने अपलोड किया है, नॉट फॉर इन डेप्थ गोइंग. देखो फिगर के साथ साथ क्लियर भी है कौन सा फोर्स क्या बोलते हैं, राइट? तो यहाँ go back when I was noting something down. ओके. डन सना? So just a second. Done, sir. Okay, so these are the things. अच्छा, मैं यहाँ बात कर रहा था, इसमें देखो फिगर देख लो. फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटी फोर्स किस तरह का होता है, ड्रैग फोर्स, बॉइंग फोर्स, मैग्नेटिक स्प्रिंग, ये सब टाइप ऑफ फोर्सेस हैं. मैं अभी इस समय डेप्थ में नहीं जा रहा because that is not in our syllabus, but yes, for your knowledge. Isn't this bound force in our syllabus? Buoyant force, Isn't the bound force in our syllabus? Like it was there. आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा ये, not in the force. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक चीज है वो देखने जा रहे हैं. Now we are going to see the type of forces, and that is known as balanced and unbalanced forces. Okay, balanced and unbalanced forces के लिए मैं सबसे best example लेने जा रहा हूँ guys. So please give me a moment. Okay, so I'm just going to upload it. Okay guys, give me a moment here. Srishti, can you just read this part? Balance force. When two or more force acting on an object are equal in direction, result in no movement. Unbalanced force. When two or more unequal force act on an object moves in the direction with the force. Net force is difference between these force. Okay, what does it mean? I will explain you guys, don't worry. We are differentiating in figure A and the figure B. Okay, now look here, how to do. This is the point object. This is what? The point object. हम लोग ऑलवेज याद रखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव राइट में जाएगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो लेफ्ट में जाएगा उसको हम नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, अब देखो राइट में गया ये, तो यहाँ पे टोटल फोर्स TF मींस टोटल फोर्स अभी हम निकालने जा रहे हैं, और ये टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल में. तो हमने इसको लिख दिया H फॉर हॉरिजॉन्टल. कितना लग गया राइट में? 300. एंड लेफ्ट में कितना लग गया? -300. It gives me how much? 0. So do you think that the point A will move? Point A will not move. So the result is no movement. That's why it is known as balanced forces, because हमारा object move नहीं किया. I will take one more example here, not to worry about it. Just give me a moment guys. So you can
what happened with this? Give me a moment. Huh? Okay. Okay, can you see this box? Yes, sir. So in this box, suppose that from here in this direction, I have applied 200 Newton, and in this side, I have applied 200 Newton. Sana, are you listening me? Yes, sir. So in the horizontal direction, total force is 200, and this I have taken, so I have taken the positive, plus this goes to the left, so I'm taking negative. It shows the direction, so total becomes how much? 0. So do you think that this box will move? So So no movement of, Because it's balanced. no movement of box, so that's why it's a balanced. इसको देखने का तरीका एक और है, मैं बता देता हूँ दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे. आप एक काम करो, आप इसको LHS लिखो और इसको RHS लिखो. अगर LHS is equal to RHS, so it's balanced. इट्स बैलेंस. अब देखो LHS में मेरे पास कितने हो गए 200 और RHS में भी कितने आ गए 200. So right. both are equal, then we can say yes, it is balanced. Understand? Yes, sir. Okay. So coming to the previous one, so unbalanced means you can see in this, here they are doing, suppose this is the point B, so I can write total force in horizontal. हमारा positive force कितना है 300 Newton 300 Newton plus negative force कितना है तो 400 minus Newton. 400 Newton. तो ये कितना देगा मुझे minus 100 Newton. अब 100 मुझे बताओ Newton. बॉडी किधर जाएगी, राइट जाएगी लेफ्ट जाएगी? Left. So body will move in left. Left. Minus और plus क्या represent किया? The direction. Direction. Is that clear, Sana? Yes. Yes, sir. अच्छा, मैं इसको एक एग्जांपल लेकर और समझा भी देता हूँ यहाँ पे. जैसे मैंने ये ले लेता हूँ. अरे ये सारा शेप क्यों नहीं आ रहा इसमें? Give me a second. Okay, अब ये आ गया. ठीक है, चलो. ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है. अब देखो मैं क्या करता हूँ इसमें जी मैंने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, एक फोर्स और लगा दिया 100 न्यूटन का, यहाँ लगाया जी मैंने 50 न्यूटन, यहाँ लगाया जी 100 न्यूटन. चलो LHS RHS कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? LHS LHS और RHS. अब LHS RHS कर लेते हैं तो LHS में कितना हो गया जी 200 300 plus that gives me 300 Newton, and here it gives me 100 plus 50, that gives me 150 Newton. So अब मुझे बताओ बॉडी किधर जाएगी? Body will move in left direction. Why? Because the left is more force. Do you understand, Sana? Yes, sir. अच्छा, अगर न्यूमेरिकली हम बात करें तो मैं लिख सकता हूँ टोटल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा टोटल इधर 150 हो जाएगा. So I will write down here 150 in the positive plus इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया ये 300 न्यूटन. सो हम यहाँ पे लिख देंगे minus 300 न्यूटन. So it will become how much? It will become minus 150 Newton. So minus 150 Newton means the body will move in this direction. इधर ज्यादा फोर्स है तो इधर मूव करेगा. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. So आप लोग एक काम करो, आप लोग टॉपिक लिखो balanced and unbalanced forces. सना? Done. Done. उसमें काम करो, यहाँ पर एक जो मैंने यहाँ सर्कल बनाया है, यहाँ छोटा सा बॉक्स. अच्छा एक काम करो, बैलेंस्ड वाला में ये बॉक्स बनाओ और ये नीचे लिख लो. Yes, sir. दिस पोर्शन, ये बॉक्स बनाओ. बॉक्स में छोटा सा रफली, ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट फिगर होना ही चाहिए. सर्कल बना लिए क्योंकि कम जगह लेता है. ओके, सो नो मूवमेंट ऑफ बॉक्स लिख दिया, राइट? ये लिख लो जल्दी से. इसको बैलेंस्ड में लिखना गाइस. एक मिनट. दिस इज फॉर
balanced forces. बोला. बैलेंस फोर्सेस हो गया सना? Yes, sir. एक Yes. मिनट. ओके. और नेक्स्ट वाला जो है, आप ये पूरा मत लिखो. You can just draw the box and you can just write down this part. Okay. And this is for the unbalanced forces. Unbalanced forces. Done, both of you guys? No, sir. Just a minute. So done. Okay. So I'm uploading one more. So, Sana, can you just look and can you explain what they have given for balanced forces here? Sana. Sana, can you hear me? Shrishti, can you hear me? Shrishti. Yes, sir. Yeah, I can hear you now. huh? Yes, sir. I can hear you now. Okay, so Sana, I'm saying that, can you explain the balanced force in this picture? Yeah, okay. So the balanced force in this, there's 5 Newton towards the left side and there's 5 Newton towards the right side. Correct. They is stable because LHS is equal to RHS as we say it. So we can say total force becomes +5 -5. That gives me 0, right? Yeah. So that's why it's balanced. Okay, Srishti, can you tell me about the unbalanced force? Motion towards the right because the 10 Newton force is applied more than the left side. Okay, so I can write +10 -5 in this. Yes, sir. So it gives me +5 Newton. 5. So +5 Newton से ये right hand side में move कर जाएगा. Correct? Yes, Okay, sir. guys, both of you. Okay, done. Okay, that's good. So we have seen balanced forces and unbalanced forces right now. Okay, that's great. So we will move further, and I think we are left with how much time? Okay, we have about 15 minutes. Okay, fine. So I'm just moving. Oh, okay. Guys, ठीक है. एक काम मैं करता हूँ. I will not move further right now because after this, whatever the topic we have, I need the full time of that. But मैं एक छोटा सा आप लोग को होमवर्क देता हूँ. प्लीज आप लोग ये तो रिवाइज करोगे ही करोगे. आज आपने क्या काम किया? आपने फोर्सेस पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस देखा है, Forces. राइट? उसके Yes, बाद sir. आपने इफेक्ट ऑफ Contact, non-contact, कॉन्टैक्ट balance force. टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखा है, राइट? कॉन्टैक्ट Hmm. नॉन कॉन्टैक्ट में डिफरेंट टाइप्स देखा है. उसका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड Unbalanced. फोर्सेस देखा है. ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है. इसको आप रिवाइज करना. यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, बट यस आफ्टर दिस वी हैव अ वेरी गुड न्यूमेरिकल्स. बट उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको प्रिपेयर करा दूं. आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ के रखेंगे. क्या पढ़ के रखेंगे? Law of motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इसमें टोटल 3 लॉज हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ and
Newton third law. Understand? First law tells us about the inertia. Second law tells us about force is directly proportional to rate of change of momentum. And third law says action and reaction. मैंने बस ये लिखा है, आप लोग जरा सा इसको डेप्थ में पढ़ेंगे. Is that clear? Sana, Yes, sir. do you understand your homework? Yes, sir. अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट लो तो हम फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, इसका डेफिनेशन है. They have definition. मैं फर्स्ट लॉ बता देता हूँ. What they says? They says that if a body is in the rest, it will continue in the rest. If a body is in motion, it will continue in the motion. मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रुका हुआ है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा. It will not try to move in the next part. आप लोग मुझे टाइम दो, मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिख देता हूं और आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल पढ़ के आएंगे. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. Sir, I have outlined something. Can you tell me वो क्या? आउटलाइन समथिंग. क्या आउटलाइन समथिंग बताओ. इनर्शिया. I will write down the spelling here. What does that mean? हाँ, What does inertia mean? वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. यही चीज, वही तो मैं बोला हूँ पढ़ने के लिए, वही आपको पढ़ना है. I will explain in the next session everything. Don't worry guys. मैं एक एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. So no need to worry. मैं काम करने जा रहा था यहाँ पे, वो ये था. Just a moment. मैं जस्ट एक ब्रीफ आप लोग. नहीं समझ में आ रहा है. एक और चीज. हाँ बताइए. ये क्या लिखा है? एक मिनट, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. एक सेकंड बस होल्ड कीजिए. मैं एक चीज यहाँ अपलोड करने जा रहा हूँ. होल्ड अ मोमेंट. अपलोड हो जाओ जल्दी से. देखो ये 1 लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ मैंने अपलोड किया है. बट दिस इज नॉट द कंप्लीट सेंटेंसेस. आई हैव टू टेल यू हाउ टू डू इट. इसको कंप्लीट करने के लिए मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग को बताऊंगा कैसे करना है. ठीक है गाइस. हाँ, मैंने आपको पिछले वाले में एक डाउट पूछा था. पिछले स्लाइड पे जा सकते हो. सेकंड लॉ के आगे आपने क्या लिखा है? ये वाला. यस. इसको कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये जो सिंबल बनाया ना, ये सिंबल बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैथ्स में आपने ग्रेड 6. यस सर, वो पता चल गया, पर डीपी डीटी है क्या वो? हाँ, dt is change in momentum. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum. अभी उतना ध्यान मत दो, मैं ये करवाऊंगा. मैंने ये सब लिखा है, आपके बस होमवर्क दिया आपको. देखो मैंने वहां ध्यान मत दो उतना. ठीक है, ये देखो, कैन यू सी दिस? यस सर. अच्छा, इसमें ना गाइस ये जो डेफिनेशन लिखा है इन्होंने, ये डेफिनेशन नहीं है. दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन. बट यस, ये लोग जो हैं F इज इक्वल्स टू ma पढ़ते जरूर हैं, बट दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. हाँ, छोटे बच्चों के लिए स्टार्टिंग में समझने के लिए आप जरूर F इज इक्वल्स टू ma बोल सकते हो. ठीक है, बट मैं जब एक्सप्लेन करूंगा, this is not a correct definition. Correct definition is what? Force is directly proportional to rate of change of momentum. ठीक है, बट यस अभी आपके लिए इतना समझना भी काफी है. आप इसको थोड़ा सा देख लेना. ठीक है Sir. हाँ, अभी मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ. सो हम नेक्स्ट सेशन में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, ये तीनों लॉ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, उससे इजी हो जाएगा समझना. ठीक है सना, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर. यस, ठीक है. चलिए, तो हम लोग
नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे. क्लियर? Thank you, sir. Yeah. Yes. ओके, ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर. Bye. Thank you. Stay connected.